Exercise 1, question 1. For motion in a straight line, which of the following is incorrect? Acceleration at some instant may be zero even if the velocity is not zero. ये तो बहुत easily possible है. अगर particle constant speed से जा रहा होगा तो उसका acceleration zero होगा, but velocity is not zero. Velocity at some instant may be zero even if the acceleration is not zero. This is possible for some instant. For example, particle जब भी अपना direction of motion reverse कर रहा होगा, उस particular instant पे उसका velocity zero होगा. When you throw a ball vertically upwards, at the highest point of its motion, its velocity is zero, but acceleration is g downwards, which is non-zero. Speed is zero, but velocity may not be zero. This is not possible, क्योंकि अगर speed zero हो गया तो velocity भी zero होगा. Speed is a magnitude of velocity. Direction of velocity and acceleration at any instant may be different. Option D भी correct है. Acceleration और velocity का direction कुछ भी हो सकता है. So option C is incorrect. Question 2. Particle moving in a straight line starts from a point and comes back to the same point after some time. तो अगर पार्टिकल वापस सेम पॉइंट पे आ रहा है मतलब उसने कहीं तो अपना डायरेक्शन रिवर्स किया होगा. दैट मीन्स किसी तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसका स्पीड जीरो हुआ होगा. सो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट. Question 3. If the average velocity of a particle moving along a straight line in a given interval of time is zero, instantaneous speed within that interval is never zero. Average velocity का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा. दैट मीन्स पार्टिकल जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है वापस उसी पॉइंट पे आ गया होगा. दैट मीन्स उसने कहीं तो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया होगा. एंड एट द पॉइंट वेयर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड, उसका स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए तो जीरो हुआ ही होगा. सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट. If the direction of displacement of a particle moving in a straight line is opposite to the direction of acceleration, the particle is necessarily moving towards the point from where it started. मान लो particle point A से start कर रहा है और किसी एक particular instant पे वो point B पे पहुंच गया. So direction of displacement is towards right. And in option D they are saying that if the direction of displacement is opposite to the direction of acceleration, तो मान लेते हैं पॉइंट बी पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है. देन इज इट नेसेसरी दैट पॉइंट बी पे जो पार्टिकल होगा वो टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड वो टुवर्ड्स ए ही मूव कर रहा होगा? नॉट नेसेसरी, क्योंकि अगर पॉइंट बी पे पार्टिकल का वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट हुआ दैट मींस पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. डायरेक्शन ऑफ मोशन पार्टिकल का कौन डिसाइड करेगा? वेलोसिटी, नॉट एक्सेलरेशन. सो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा. ऑप्शन सी. If direction of velocity of a particle moving in a straight line is opposite to that of the acceleration, then the particle is moving from where it started. इस केस में भी direction of velocity is opposite to the direction of acceleration, but this does not imply that particle is moving towards the point from where it started. अच्छा, अगर ये वाला condition satisfy होना होता तो velocity और displacement का direction opposite होना चाहिए था. अगर ये दोनों opposite directions में होते, then that statement would have been correct. Then we can say that the particle is directed towards the point from where it was started. तो इस केस में आंसर none of these होगा. Question number 4. The speed of a particle may never be zero, even though the average speed within a time interval is zero. अच्छा, average speed का फॉर्मूला क्या होता है? Average speed is total distance. Total distance upon total time. और अगर एवरेज स्पीड ही गिवन टाइम इंटरवल में जीरो हो गया मतलब डिस्टेंस भी जीरो होगा. और डिस्टेंस का जीरो होना मतलब पार्टिकल मूव ही नहीं किया, पार्टिकल का स्पीड हर इंस्टेंट के लिए जीरो होगा. ऑप्शन बी. द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो इन अ टाइम इंटरवल. इट इज पॉसिबल दैट द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज नेवर जीरो इन दैट टाइम इंटरवल. दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गया मतलब डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा. एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो मतलब पार्टिकल जहां से शुरू करेगा वहीं पे वापस आ गया होगा. तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो उसका वेलोसिटी जीरो हुआ होगा जहां पे भी उसने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स किया होगा. ऑप्शन सी. मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड. ऑप्शन सी इज करेक्ट. जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा उसी को अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल सकते हैं. एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इन अ टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल. Average speed is total distance upon total time, and average velocity is
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम तभी होंगे जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होंगे, और किसी एक मोशन के लिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम तभी होंगे जब पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। सो ऑप्शन डी इज नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर ऑप्शन डी में मे बी लिखा होता, मे बी इक्वल, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट व्हेन दे आर स्टेटिंग समथिंग दैट नीड्स टू बी ऑलवेज ट्रू, अदरवाइज दैट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो फोर्थ का आंसर खाली ऑप्शन सी होगा। Question 5. A particle moving in a straight line covers half the distance with a speed of 3 meters per second. The other half of the distance is covered in two equal time intervals with uniform speeds of 4.5 and 7.5. तो total distance को x मान लेते और इसका half distance वो 3 meters per second से cover कर रहा होगा, and in the remaining half the distance is covered in two equal time intervals. तो remaining time को अगर मैं t2 मान लूँ, रिमेनिंग टाइम का हाफ इट इज कवरिंग विथ 4.5 मीटर्स पर सेकेंड, और बाकी का जो हाफ होगा वो 7.5 मीटर्स पर सेकेंड से वो कवर कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है उसको अपन इस ट्री डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लियो। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो अपन ने x मान लिया, तो टोटल टाइम को भी हमें x के टर्म्स में निकालना होगा। इस जर्नी का अगर टाइम मैं t1 मान लूं, टोटल टाइम t विल बी इक्वल्स टू t1 प्लस t2। t1 is given by distance upon speed, x upon 2 divided by 3, so this will be x by 6. Similarly t2 फाइंड करने के लिए we can notice that ये वाला जो डिस्टेंस होगा प्लस ये वाला जो डिस्टेंस होगा that will be equals to ये total distance x by 2. So 4.5 into t2 by 2, which is this distance, plus 7.5 into t2 by 2, which is this distance, and this should be equals to x by 2. तो इसको सिंप्लीफाई करके अपन t2 भी x के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, 2 कैंसिल हो जाएगा and t2 will come out to be x by 12. So what will be t1 plus t2? X by 6, which is 2x by 12 plus x by 12. So this will be x by 4. So if total time of journey is x by 4, average speed will be equals to x upon x by 4, which is 4 meters per second. Option D. Question number 6. A bullet fired into a thick block loses half of its velocity after penetrating 3 centimeters. The total length penetrated by the bullet before it comes to rest inside the block is. तो यहाँ पे एक थिक ब्लॉक मान लेते, और बुलेट का इनिशियल स्पीड अगर मैं v0 मान लूं, तो 3 सेंटीमीटर ट्रेवल करने के बाद इसका स्पीड v0 by 2 हो गया एज पर द गिवन कंडीशन। और यहाँ पे अपन अज्यूम करेंगे कि ब्लॉक बुलेट के ऊपर कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा होगा, तो बुलेट का जो रिटार्डेशन है वो भी अपन कांस्टेंट मान सकते। लेट्स से a इज द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट, सो 0.1 से 0.2 तक इसके क्या क्या पैरामीटर्स अपन को पता है। इसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है, इसका फाइनल वेलोसिटी v0 by 2, इसका डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर्स विच इज 0.03 मीटर्स, और इसके एक्सेलरेशन को -a मान लो। वी आर अज्यूमिंग राइट पॉजिटिव and acceleration is retarding in nature, so acceleration will be towards left, which is negative. इन सब पे अपन थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते। फाइनल स्पीड का स्क्वायर v0 by 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर -2 into a into 0.03. So if we simplify this, we will get v0 square minus v0 square by 4, which is 3 v0 square by 4 equals to 2 into a into 0.03. ये पहला इक्वेशन अपन को मिल रहा है। सेकेंड कंडीशन में वी वांट टू फाइंड दैट आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, इनिशियल स्पीड को v0 मान लो सेम, एंड आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस इट्स फाइनल स्पीड विल बिकम 0 नाउ। तो अगर मैं सेम थर्ड इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर दूं, 0 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू v0 स्क्वायर -2
we can assume the same acceleration a into s. तो इस केस में s क्या होगा ये हमें फाइंड करना, and we can substitute the value of v naught square from the first equation. v naught square कितना होगा? v naught square is 4 into 2a into 0.03 divided by 3. This is v naught square, and v naught square will be equals to 2as. तो यहाँ से a भी कैंसिल हो जाएगा, and we will get the value of s. ऑप्शन में s सेंटीमीटर्स में दिया हुआ है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो 0.03 into 100 ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा. सो s की वैल्यू किसके इक्वल होगी? s will come out to be equals to 4 centimeters. So option C is the correct answer. Question number 7th. A particle starts from rest and travels a distance of 6 meters along a straight line in 2 parts. The first part of the journey is at a constant acceleration of 2 meters per second square, and the second part at a constant retardation of 4 meters per second square. देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए we are going to use modified version of equation 2. Equation 2 generally अपन s equals to ut plus half at square लिखते, and first equation से हमें पता है कि v is u plus at. So we can say from the first equation that u is equals to v minus at. So if we substitute the value of u in the second equation, we can say that s is equals to v minus at. u के बदले v minus at लिख दो into t plus half at square. If we simplify this, we will get vt minus at square plus half at square. So we can write the equation even in this format. मान लो किसी मोशन में अपन को फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड नहीं पता, so we can say that displacement is equals to vt, final speed into time, minus half at square. So this is also one of the equation that we can use. Question number 7 वैसे तो ग्राफ के मेथड से और भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, but you will learn about graphs in kinematics too. तो बिना ग्राफ्स के इसको सॉल्व करके कैसे देखेंगे? इसके लिए इसके जर्नी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. फर्स्ट पार्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी में एक्सेलरेशन इज 2 meters per second square और इनिशियल स्पीड 0 होगा. इसका फाइनल स्पीड v1 मान लेते और फर्स्ट पार्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट x मान लेते. सो दीज आर द पैरामीटर्स फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. वैसे ही सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड क्या होगा? सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल स्पीड विल बी सेम एज फाइनल स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट का फाइनल स्पीड कुछ v मान लेते, तो सेकेंड पार्ट का इनिशियल स्पीड भी v हो जाएगा. सेकेंड पार्ट का फाइनल स्पीड कितना होगा? 0. एंड सेकेंड पार्ट का रिटार्डेशन इज गिवन टू बी 4. सो विद साइन कन्वेंशन वी विल टेक दिस टू बी -4 meters per second square. टोटल डिस्टेंस इज 6. सो सेकेंड पार्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट पार्ट का डिस्प्लेसमेंट अपन ने x माना था, तो सेकेंड पार्ट का डिस्प्लेसमेंट 6 minus x लिख सकते. Now we can apply second equation. यहाँ पे कितने अननोन्स है हमारे पास? v और x, ये 2 अननोन्स है. तो इन दोनों अननोन्स के लिए अपन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई कर सकते. अच्छा, बट टाइम नहीं पता अपन को, so we can't apply second equation. So somehow we need to find the relation between times in the first part and second part. तो फर्स्ट पार्ट में अगर मैं टाइम को t1 मान लूं और सेकेंड पार्ट में टाइम को t2 मान लूं, we can apply first equation on these parameters. इन चारों पैरामीटर से फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा? For first part of the journey, if we apply first equation, we will get v equals to 0 plus 2t1. और वैसे ही सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए अगर अपन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें, उसके लिए फाइनल स्पीड 0 है और इनिशियल स्पीड v है, तो 0 equals to v minus 4t2. So from here we are getting t1 as v by 2 and from here we are getting t2 as v by 4. तो अगर मैं t2 को t0 मान लूं, we can say that t1 is 2 times t2. So t1 कितना हो जाएगा? t1 will be 2 t0. So we can write t1 as 2 t0 and t2 as t0. Now we have 2 unknowns. We have 2 unknowns x and t0, and we can apply second equation
फॉर बोथ द पार्ट्स ऑफ द जर्नी। जर्नी के फर्स्ट पार्ट के लिए अगर अपन सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करते, आई नो दैट इनिशियल स्पीड इज 0, सो एस एक्स इक्वल्स टू ut 0 प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू t1 का स्क्वायर विच इज 4 t0 का स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी के लिए अपन ये मॉडिफाइड इक्वेशन यूज करेंगे, तो इससे अपन को क्या मिलेगा, 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू vt, v is 0 minus half at square minus half a is also minus 4 into t naught का square, so this is equals to 2 t naught का square, second equation। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो x एलिमिनेट हो जाएगा and we will get 6 equals to 4 t naught का square plus 2 t naught का square, 6 t naught का square, so t naught is coming out to be 1 second। तो जर्नी के पहले पार्ट में 2 t naught मतलब 2 सेकेंड्स लगा होगा, और जर्नी के सेकेंड पार्ट में t naught मतलब 1 सेकेंड लगा होगा, सो टोटल टाइम ऑफ जर्नी इज 3 सेकेंड्स। इस मेथड से इस सवाल को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, बट व्हेन यू विल स्टडी अबाउट ग्राफ्स यू कैन सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन अ मच लेसर टाइम। सो फॉर नाउ वी विल यूज ओनली दिस मेथड एंड आंसर विल बी 3 सेकेंड्स। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A train moves in a straight line with a uniform acceleration if x and y are the velocities with which the front end and the rear end of the train respectively crosses a fixed electric pole। मान लो ये वो इलेक्ट्रिक पोल है, और रेफरेंस के लिए मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। हम लोग ट्रेन का टॉप व्यू देख रहे, तो जब ट्रेन का फर्स्ट एंड, ट्रेन का जो सबसे फ्रंट एंड इंजन वाला पार्ट, वो जब पोल को क्रॉस कर रहा था उस समय ट्रेन का वेलोसिटी x दिया होगा, और जब ट्रेन का रेयर एंड पोल को क्रॉस कर रहा होगा उस समय इसका वेलोसिटी y दिया होगा, और फ्रंट एंड और रेयर एंड के बीच में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, जो भी ट्रेन का लेंथ होगा वो, और क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली ट्रेन का कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, और ट्रेन का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म दिया हुआ है, तो ट्रेन का एक्सेलरेशन a मान लेते टुवर्ड्स राइट। तो फर्स्ट पोजीशन से लेके सेकंड पोजीशन तक ये वाला अगर अपन मोशन देखें, इस मोशन के लिए अपन को इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है l, और एक्सेलरेशन a अज्यूम कर लिया, तो इन सब पे अपन कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, u, v, s and a। वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन, v square equals to u square plus 2as, that is called the sum equation 1. Now what they are asking, what is the velocity with which the middle of the train crosses the pole। तो जब ट्रेन का मिडल पार्ट पोल को क्रॉस कर रहा होगा, इसका वेलोसिटी v dash मान लेते, and let's call this time instant 3। Now if we apply the motion for time instant 1 to 3, टाइम इंस्टेंट 1 से लेके टाइम इंस्टेंट 3 तक ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, l/2। ट्रेन का इनिशियल स्पीड x होगा, और ट्रेन का फाइनल स्पीड अननोन है जिसको अपन v dash मान रहे, और एक्सेलरेशन सेम a होगा। सो अगेन वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन ऑन ऑल दीस पैरामीटर्स, v dash स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2a l/2। And from the first equation we can say that 2al is equals to y square minus x square, so v dash का square will be equals to x square plus y square minus x square upon 2, so this will give us v dash equals to x square plus y square upon 2 under root। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A body leaving a certain point moves with an acceleration which is constant in magnitude and direction. At the end of the first second, its velocity is 1.5 meters per second. अच्छा, बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी u मान लेते और एक्सेलरेशन a मान लेते। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड के बाद इसका फाइनल वेलोसिटी 1.5 मीटर्स पर सेकेंड हो गया, ये कंडीशन दिया हुआ। और सेकेंड कंडीशन क्या दिया, सेकेंड कंडीशन में भी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो सेम ही होगा, और t इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स के बाद
एट द एंड ऑफ द 6 सेकेंड बॉडी स्टॉप्स मोमेंटरीली, तो यहाँ पे इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा. वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिफोर इट स्टॉप्स. तो इन सारे पैरामीटर्स पे अपन फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 1.5 इक्वल्स टू u प्लस at एंड t इज 1. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग. और इस पे फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 0 इक्वल्स टू u प्लस 6a. लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके अपन u और a फाइंड कर सकते. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 विल गिव अस 1.5 equals to minus 5. So a is coming out to be minus 0.3 meters per second square. Obviously the body is retarding, तभी उसका velocity finally 0 हो रहा. और acceleration आ गया तो u कितना होगा, u will be equals to 1.5 minus a, and 1.5 minus a मतलब 1.5 minus of minus 0.3, so u will be equals to 1.8 meters per second. a और u मिल गया. So now how do we calculate the distance traveled by the body? For that you can either apply second equation or you can apply third equation because you also know the final speed. तो third equation apply करने पर क्या मिलेगा, 0 square equals to u square 1.8 का square minus 2 into a into s. So from this displacement will come out to be equals to 1.8 का square upon 2 into 0.3. 1.8 into 1.8 upon 2 into 0.3, so this will be 0.9, this will be 3, and 1.8 into 3 is 5.4 meters. This is our answer. Question number 10th. यहाँ पे पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी गिवन है. इनिशियल वेलोसिटी इज i cap minus 4j cap plus 10k cap. And acceleration is also given, I cap plus j cap minus 2k cap. And after time t equals to 2 seconds, we want to find the final velocity. तो इस पे डायरेक्टली पहला इक्वेशन अप्लाई कर दो. वेक्टर फॉर्मेट में फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो. सो व्हाट वी आर गेटिंग, I cap minus 4j cap plus 10k cap. ये इनिशियल वेलोसिटी होगा प्लस 2 times acceleration, which is I cap plus j cap minus 2k cap. तो इससे क्या आंसर आ रहा है, I cap plus 2 I cap 3 I cap minus 4 plus 2 minus 2 j cap 10 minus 4 plus 6 k cap. This is the final velocity that we are getting, and they are asking us what is the unit vector along the final velocity. तो किसी भी वेक्टर के along यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. तो 3 I cap minus 2 j cap plus 6 k cap upon 3 square plus 2 square plus 6 square का अंडर रूट. और इसमें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 3 I cap minus 2 j cap plus 6 k cap. ऑप्शन सी मैच हो रहा है. अंडर रूट ऑफ 3 square plus 2 square plus 6 square is 49 का अंडर रूट, which is 7. So magnitude of v is 7. So unit vector along v will be vector v upon its magnitude. So from this we will get option C as the answer, right? Question number 11 देखते. यहाँ पे अपन को relative velocity वाला concept apply करना होगा. A bus is starting from rest and moves with a constant acceleration of 1 meters per second square. A boy who is 48 meters behind the bus starts running with a constant speed of 10 meters per second. तो बॉय का अपन एक्सेलरेशन 0 मान सकते और बस का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा. द अर्लीस्ट टाइम इन विच द बॉय कैन कैच द बस. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में अपन रिलेटिव पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं. हियर बस एंड बॉय आर ट्रैवलिंग फॉर द सेम टाइम इंटरवल, सो वी कैन अज्यूम वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू बी द ऑब्जर्वर. तो अगर अपन बस को ऑब्जर्वर मान ले, लेट अस से दिस इज ऑब्जेक्ट 1 एंड दिस इज ऑब्जेक्ट 2. we can observe everything of object 1 with respect to object 2. और क्योंकि object 2 यहाँ पे observer है, object 2 को अपन रेस्ट पे मान सकते हैं. So what is the velocity, initial velocity of 1 with respect to 2?
1 का इनिशियल वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कितना होगा? 1 का वेलोसिटी विच इज 10 माइनस 2 का वेलोसिटी विच इज 0, तो रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकेंड आ जाएगा। वैसे ही 1 का एक्सेलरेशन 2 के रिस्पेक्ट में, बॉय का एक्सेलरेशन बस के रिस्पेक्ट में फिर भी इक्वल्स टू बॉय का एक्सेलरेशन विच इज 0 माइनस बस का एक्सेलरेशन विच इज 1, so relative acceleration is coming out to be minus 1 meters per second square, and relative displacement of boy with respect to bus, we want to find the time in which the boy catches the bus. तो जब बॉय बस को कैच कर रहा होगा तो बॉय और बस का पोजीशन सेम होगा, और बस को अपन रेस्ट पे मान रहे, तो बस के रिस्पेक्ट में बॉय ने 48 मीटर्स राइट में ट्रेवल किया होगा, एंड वी आर यूजिंग राइट एज पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन. So displacement of boy with respect to bus will be 48 meters towards right. So plus 48, and we want to find time. तो इन सारे relative parameters पे अपन second equation apply कर सकते. S equals to ut plus half at square. 48 equals to 10t plus half into minus 1 into t square. पूरे equation को 2 से multiply कर दो और इन दोनों को LHS में लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा? टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इक्वल्स टू 0. इसके रूट्स क्या होंगे? टी स्क्वायर माइनस 12t माइनस 8t में इसको स्प्लिट कर सकते. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग आइदर t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स और t इक्वल्स टू 12 सेकेंड्स. यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आंसर्स आ रहे. इसका क्या मतलब है? t इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स में बॉय ने बस को ओवरटेक किया होगा पीछे से, और क्योंकि इनिशियली बॉय का स्पीड ज्यादा होगा, बॉय बस से आगे निकल जाएगा, लेकिन बस तो कंटिन्यूसली एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो कुछ समय के बाद बस का भी स्पीड ज्यादा होगा, तो 12 सेकंड के बाद वापस बस बॉय को ओवरटेक कर जाएगा. तो अर्लीएस्ट टाइम इन विच द बॉय कैन कैच द बस, दैट विल बी ऑब्वियसली 8 सेकंड्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? अ पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द फर्स्ट फ्लोर इन अ मॉल यूजिंग एन एस्केलेटर, एंड वी आर गिवन 3 सेपरेट केसेस. फर्स्ट केस में द पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द एस्केलेटर विच इज मूविंग, तो खाली एस्केलेटर मूव कर रहा है, एंड इस केस में इसको जो टाइम लग रहा है दैट इज 1 मिनट. यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के डिस्टेंस को x मान लेते, एस्केलेटर की स्पीड को v मान लेते. सो इन द फर्स्ट केस distance will be equals to escalator का speed into 1 minute which is 60 seconds. Second case में escalator move नहीं कर रहा और खाली person move कर रहा, तो person की speed को vp मान लेते, and in the second case to travel the same distance x the person is taking 3 minutes, that is 180 seconds. This is second equation. Now they are asking us how long will the person take to reach the top if he walks up the moving escalator. मतलब थर्ड केस में पर्सन भी मूव कर रहा है और एस्केलेटर भी मूव कर रहा होगा, तो इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा? ve plus vp, this is the effective speed, and distance is still same x, so distance x equals to effective speed into time. We need to calculate this time. फर्स्ट इक्वेशन से और सेकेंड इक्वेशन से अपन ve और vp निकाल सकते. Substitute the values. ve can be written as x by 60 from the first equation, and vp can be written as x upon 180. This into time. तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा. 1 equals to 3 by 180 plus 1 by 180, 4 by 180. इसको सिंप्लीफाई कर लो, इससे टाइम 180 upon 4 seconds which is 45 seconds आ जाएगा आंसर. Question 13. A particle takes t seconds less and acquires a velocity of v meters per second more in falling through a certain height on a planet where the acceleration due to gravity is 8g. एक पर्टिकुलर प्लेनेट पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इसको दूसरे प्लेनेट से कंपेयर कर, कंपेयर विद फ्री फॉलिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अनदर प्लेनेट वेयर द पार्टिकल इज अगेन डिरीच्ड फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द सेम हाइट. दोनों के लिए हाइट सेम होगा, मगर दूसरे प्लेनेट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2g. ओके, तो यहाँ पे दोनों प्लैनेट्स के मोशन को कंपेयर कर लेते. लेट्स से दिस इज प्लैनेट 1 एंड दिस इज प्लैनेट 2. दोनों प्लैनेट्स के लिए इनिशियल स्पीड 0 होगा, पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट,
एंड दोनों प्लैनेट्स पे हाइट सेम है, सेम डिस्टेंस के लिए वो लोग फॉल कर रहे हैं, तो दोनों के लिए s को सेम मान लेते हैं h, अज्यूमिंग डाउनवर्ड्स पॉजिटिव। बट दोनों के लिए वेलोसिटी अलग होगा, फाइनल स्पीड ऑब्वियसली अलग होगा क्योंकि एक्सेलरेशन डिफरेंट है। अच्छा, दोनों के एक्सेलरेशंस नोट कर लेते हैं। प्लैनेट 1 के लिए एक्सेलरेशन इज 8g एंड प्लैनेट 2 के लिए एक्सेलरेशन इज 2g। प्लैनेट 1 को जो टाइम लग रहा है, प्लैनेट 1 पे पार्टिकल को जो टाइम लग रहा होगा उसको t1 मान लेते और फाइनल स्पीड को v1, और यहाँ पे पार्टिकल को जो टाइम लग रहा है उसको t2, फाइनल स्पीड को v2। नाउ लेट्स अप्लाई दिस कंडीशन। Particle takes t seconds less and acquires a velocity of v meters per second more. Obviously, planet 1 के ऊपर particle को कम टाइम लगा होगा compared to this, और particle ने final speed भी ज्यादा acquire किया होगा। तो condition के according t2 minus t1 is given to be equals to t and v1 minus v2 is given to be equals to v. Particle on planet 1 acquires a velocity of v1 more compared to particle on planet 2. तो ये दो कंडीशन अपन को गिवन है और इन दोनों कंडीशन की मदद से अपन को v, t और g इन तीनों में रिलेशन निकालना। ओके, सो सबसे पहले अपन t1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी हैव ऑल दीज पैरामीटर्स। सो t1 कैलकुलेट करने के लिए वी कैन अप्लाई सेकेंड इक्वेशन एंड द गुड थिंग इज इनिशियल स्पीड इज 0। तो इनिशियल स्पीड को 0 मानने पर सेकेंड इक्वेशन काफी आसान हो जाएगा, ut वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो इफ यू अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑन बोथ दिस, वी विल गेट h इक्वल्स टू ut is 0 हाफ a1 8g इंटू t1 का स्क्वायर। पहले पार्टिकल से ये आएगा, तो इससे t1 कितना आएगा? t1 विल बी इक्वल्स टू 2h अपॉन 8g का अंडर रूट, विच इज h अपॉन 4g का अंडर रूट। This is T1. Similarly, if we apply second equation for particle 2, we will get h equals to half into 2g into t2 ka square. So this 2 will get cancelled and t2 will come out to be h by g ka under root. So we calculated t1 and t2. Now we also want to calculate v1 and v2. और v1 और v2 calculate करने के लिए we can apply third equation. We will try to apply the equation in which distance is also involved, क्योंकि दोनों के लिए distance same होगा। तो फाइनल स्पीड निकालने के लिए अपन थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पार्टिकल के लिए थर्ड इक्वेशन क्या आएगा? v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर विच इज 0 प्लस 2 into a which is 8g into h. So for the first particle v1 is coming out to be 16gh का अंडर रूट। 16gh का अंडर रूट मतलब 4 times gh का अंडर रूट। Similarly for second particle v2 square is coming out to be u square which is 0 plus 2 into 2g into h. So v2 will be equals to 2 times gh का अंडर रूट। तो अगर ये सारे वैल्यूज अपन ये दोनों इक्वेशन में अप्लाई कर दे, लेट्स सी व्हाट वी विल गेट। t2 minus t1 equals to t. So t2 is under root of h by g and t1 is under root of h by 4g. अच्छा, इस 4 को भी अपन अंडर रूट से बाहर लेके आ सकते। This will become 1 upon 2 times under root of h by g. So t2 minus t1 कितना होगा? t2 minus t1 will become under root of h by g minus half of under root of h by g. So this will be half of under root of h by g. This is t2 minus t1, which is given to be equals to t. Similarly, v1 minus v2 will be 2 times under root of gh, and this is given to be equals to v. तो अभी इन दोनों इक्वेशन को अपन अगर डिवाइड कर दें तो h के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। We want the ratio of v and t. तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। v अपॉन t कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ h कैंसिल हो जाएगा। 2 डिवाइड बाय हाफ इज 4 and root g divided by 1 upon root g is g. So we are getting v to be equals to 4 times g into t. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है?
ऑप्शन बी मैच हो रहा है इससे, v equals to 4 times g into t. Okay. Question number 14th. A ball is thrown vertically down with a velocity of 5 meters per second from the top of a tower. With what velocity should another ball be thrown vertically downwards after 2 seconds from the top of the same tower so that it can hit the first ball in further 2 seconds? तो देखो यहाँ पे टावर के टॉप से फर्स्ट बॉल को अपन फेंक रहे 2 meters per second से, दिस इज द फर्स्ट बॉल, एंड 2 सेकंड के बाद अपन वापस एक और बॉल को फेंक रहे, सेकंड बॉल को, और इसको कितने स्पीड से फेंकना चाहिए? सेकंड बॉल इज थ्रोन आफ्टर t equals to 2 seconds and after more 2 seconds the second ball is striking the first ball. तो सेकंड बॉल इफेक्टिवली खाली 2 सेकंड के लिए नीचे गिरा होगा एंड फर्स्ट बॉल इफेक्टिवली 4 सेकंड के लिए नीचे गिरा होगा. तो अगर दोनों बॉल्स के लिए अपन सारे पैरामीटर्स नोट कर ले, अज्यूमिंग डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, फर्स्ट बॉल का इनिशियल स्पीड कितना होगा? 5 meters per second. दोनों के लिए एक्सेलरेशन 10 डाउनवर्ड्स, और मान लेते हैं कि दोनों बॉल्स h डिस्टेंस ट्रेवल करने पर एक दूसरे को हिट कर रहे होंगे, तो दोनों बॉल्स के लिए डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा, h डाउनवर्ड्स. फर्स्ट बॉल के लिए टाइम कितना होगा? सेकेंड बॉल को 2 सेकंड के बाद फेंका था और फर्दर 2 सेकंड के बाद वो फर्स्ट बॉल को हिट कर रहा था, तो फर्स्ट बॉल के लिए टोटल टाइम विल बी 4 seconds. सिमिलरली फॉर सेकेंड बॉल इनिशियल स्पीड इज अननोन, उसको u मान लेते, एक्सेलरेशन इसके लिए भी 10 होगा एंड डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी h होगा, और इसके लिए जो टाइम होगा वो 2 सेकंड होगा. So if we apply second equation on first ball, what we will get? We can find the value of h. H equals to ut, 5 into 4 plus half into 80 square, half into 10 into t का square. So इससे h कितना आ रहा है? 20 plus 5 into 16. H will come out to be equals to 100 meters. And we can use this h in the second equation of second ball. Second ball पे अभी second equation apply कर दो. 100 equals to, इसके लिए u unknown, तो u time is 2 for second ball plus half into acceleration is 10 into 2 का square. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर सेकेंड बॉल का स्पीड मिल जाएगा हाफ इंटू 10 5 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 4 20 100 minus 20 is 80. 2u is equals to 80, so u will be equals to 40 meters per second. मतलब सेकेंड बॉल को 40 meters per second से थ्रो करना पड़ेगा, तो वो फर्स्ट बॉल को 2 सेकंड के बाद हिट करेगा एज पर द गिवन कंडीशन. आंसर विल बी ऑप्शन ए. अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. A particle is projected vertically upwards from point A. Point A से पार्टिकल को vertically upwards फेंक रहे. It takes t1 time to reach point B. A से B तक पहुंचने के लिए t1 टाइम लग रहा है, but it still continues to move up. मतलब B मैक्सिमम हाइट से कम होगा, वो B के आगे और ऊपर जाएगा. If it further takes t2 time to reach the ground from point B, तो B से वापस ग्राउंड तक रीच करने के लिए इसको और t2 टाइम लग रहा है. यहाँ पे कलर कोड कर देते हैं इसको. A से B तक t1 टाइम लग रहा है, येलो पाथ को ट्रेवल करने के लिए t1 टाइम लग रहा है, और B से वापस ग्राउंड तक आने के लिए लेट अस से ये वाला जो पाथ होगा B से वापस ग्राउंड, यहाँ तक आने के लिए t2 टाइम लग रहा होगा. So this is the condition given. यहाँ पे let's mark one more point for reference. Point C को mark कर देते, which is at the same level of point B. Okay. We want to find the height of point B from the ground. B का अपन को height निकालना. तो अगर B का height मैं h मान लूँ, तो C का भी height ground से h ही होगा. Points B and C are both at the same height from the ground. So if we apply the equation for A से लेके B तक का मोशन और A से लेके C तक का मोशन, ये दोनों मोशन के लिए अगर मैं सारे पैरामीटर्स को नोट कर लूँ, तो इन दोनों मोशन के लिए इनिशियल स्पीड को मैं u मान सकता हूँ. मान लो पार्टिकल को पॉइंट A पे u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, तो इनिशियल स्पीड u होगा
acceleration minus g होगा, assuming upwards positive, and displacement will be h and time will be equals to t. और ये सारे पैरामीटर्स के लिए कितने कंडीशन पॉसिबल है? 2 रियल कंडीशंस पॉसिबल है, तो इससे टाइम के भी 2 रियल सॉल्यूशंस आने चाहिए. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम वी कैन अप्लाई सेकंड इक्वेशन, s equals to ut plus half at square, h equals to ut minus half gt square. So we are getting a quadratic in time जिसके 2 पॉसिबल आंसर्स पॉसिबल है, और एक्चुअल में 2 आंसर्स होने भी चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि एक टाइम जो होगा वो a से b तक का टाइम होगा और एक टाइम a से c तक का टाइम होगा. क्वाड्रेटिक को इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं, हाफ gt स्क्वायर माइनस ut प्लस h विल बी इक्वल्स टू 0, राइट. बट यहाँ से जो भी 2 टाइम्स अपन को मिलेंगे, दैट टाइम्स विल बी फ्रॉम a टू b एंड फ्रॉम a टू c. तो a से b तक का तो टाइम अपन को t1 दिया हुआ, बट a से c तक का टाइम अपन को नहीं पता. I know the time from b to a, but we can calculate the time for a to c. In this example, we can say that जो टाइम a से b तक लगा होगा, वही सेम टाइम c से a तक भी लगा होगा वापस नीचे आते समय. a से b तक जो टाइम लग रहा है वही सेम टाइम अपन c से a तक भी मान सकते. एंड दिस इज इक्वल्स टू t1, मतलब a से b तक का टाइम एंड c से a तक का टाइम इज t1. सिमिलरली b से a तक का टाइम, ऑरेंज वाला पाथ जो फॉलो कर रहा है b से a तक, दिस टाइम विल बी इक्वल्स टू t2 जो सवाल में दिया हुआ है. एंड b से a तक के टाइम को अपन b से c तक का टाइम प्लस c से a तक का टाइम लिख सकते, बट c से a तक का टाइम इज सेम एज a से b तक का टाइम. सो आई कैन कैंसिल दिस एंड आई कैन कॉल दिस a से b तक का टाइम, एंड a to b प्लस b to c is same as a to c. So we can say that a से लेके c तक भी t2 टाइम लगा होगा. ये लॉजिक समझ में आया सबको? a से c तक भी t2 टाइम लगा होगा. That means एक्चुअली क्वेश्चन में जो t1 t2 दिया हुआ है वो ऐसे क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशंस होंगे. और क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में तुम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे पहले से. द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स t1 t2 will be equals to c by a. c मतलब h and a मतलब g by 2. So this is 2h by g. तो यहाँ से h कितना हो जाएगा? h will be equals to g t1 t2 upon 2. Option D. Okay.